Hello everyone, I am back to another chapter of history, chapter 4, which is the Mughal Empire. In the previous video, we completed the Delhi Sultanate, and in this video, we are going to begin the Mughal Empire history. The Mughal Empire, as we read in the previous chapter, was founded by Babur. Babur set up the empire after he defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. The Mughal rulers managed to create a vast empire and remained in power for a long period of time. The first six Mughal kings are often referred to as the Great Mughals. Jahiruddin Muhammad Babur was the founder of the Mughal Empire in India. At the peak of their power, they control a large part of the subcontinent. In the Middle Age, a very powerful empire was that of the Mughals. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. Until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the rampart of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal Emperor. मिडिल एज में किसी भी रूलर के लिए रूल करना एक डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डाइवर्सिटी देखने को मिलता था पीपल और कल्चर में, लेकिन मुगल ने वेरी शॉर्ट टाइम में दिल्ली और आगरा के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। रेड फोर्ट है दिल्ली में जो मुगल एम्परर की रेसिडेंस हुआ करता था, और आज भी इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस करते हैं नेशन के प्रति इसी रेड फोर्ट से। Who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, and from the father's side, they were the descendants of Taimur. But the Mughals did not like to be called Mughal or Mughal. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of the innumerable people. It was also linked with the Uzbeks. So मुगल कौन थे? मुगल थे दो ग्रेट महान वंशज के वंशावली सीरीज ऑफ फैमिली। मदर साइड से चेंगिस खान के सक्सेसर थे जो मंगल के रूलर थे और वो चाइना और सेंट्रल एशिया में रूल करते थे। फादर साइड में ये तैमूर के सक्सेसर थे जो इराक, ईरान और तुर्की में राज करते थे। मुगल को ये पसंद नहीं था कि उनको कोई मंगल के डिसेंडेंट बोल के जाने, क्योंकि चेंगिस खान जो थे वो बहुत सारे लोगों को, एनिमलों को हत्या किया था बिना वजह। और सेकंड था इनके और एक चेंगिस खान के और एक अदर ट्राइब कंपिटिटर थे उज्बेक में, जिससे ये जुड़ गया था, जिसकी वजह से ये लोग मंगल के डिसेंडेंट्स के वंश बोल के जाना जाए ये पसंद नहीं करते थे। अब हम बाबर के फैमिली ट्री देखेंगे कि पहले वो लोग पिता के साइड से तैमूर के डिसेंडेंट थे। तो तैमूर के बाद आए थे मिरन शाह जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे बाबर के, और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद मिर्जा आए जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे बाबर के, और उसके बाद अबू सैद जो ग्रैंडफादर थे बाबर के, और उमर शेख जो बाबर के फादर थे, और उसके बाद आए बाबर, और बाबर के बाद आए उनके बेटे हुमायूं, उनके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स। Babur, the first Mughal emperor, captured Delhi in 1526 by defeating Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat. Then Humayun captured Delhi back in 1555. Akbar captured Chittor, Gujarat, Bihar, Bengal, Kashmir, etc. Then Jahangir took campaign against Sikh and Ahams. Then Shah Jahan captured Ahmednagar and Bijapur. Then Aurangzeb waged a long battle in the Deccan.
सो बाबर जो थे वो फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के इंडिया में, और सिर्फ 12 साल में ही उन्होंने फरगना में उन्होंने रूल किया। उनके बाद 1504 में उन्होंने काबुल को सीज किया, एंड 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के बैटल ऑफ पानीपत में उनको हरा के उन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया। उसके बाद जो हुमायूं और अकबर, जहांगीर, ये शाहजहां, औरंगजेब ने जो जो वो एरिया को, जगह को कैप्चर किया, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो चैप्टर होने वाली है उस सब चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस होगी। One important thing, gunpowder technology was brought to India for warfare in the 14th century. Firearms were used for the first time in regions such as Gujarat, Malwa, and Deccan, and was used by Babur in early 16th century. मुगल एम्पायर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अर्ली मुगल्स एंड लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स के टाइम पीरियड है 1526 से 1707 तक, और लेटर मुगल्स का टाइम पीरियड है 1707 से लेके 1857 तक। अर्ली मुगल्स एंड टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्ली मुगल्स में सबसे पहले है बाबर, और उसके बाद है हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे 1540 से लेके 1555 के अंदर शेरशाह सूरी आ जाते हैं, और वो दिल्ली का तख्ता ले लेते हैं, और हुमायूं फिर पावर में आते हैं, और फिर दोबारा 55 से लेके 56 तक राज करते हैं। देन उसके बाद आती है अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, एंड देन औरंगजेब। लेटर मुगल्स में रूलर हैं बहादुर शाह 1, जहांदर शाह, फारूक सियर, एंड रफ़ी-उद दराजत, मोहम्मद शाह रंगीले, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर 2, शाह आलम 2, अकबर 2, एंड बहादुर शाह 2। अकबर फाउंडर थे मुगल एम्पायर के इन इंडिया में, और उनके टाइम पीरियड था रूलिंग के 1526 से 1530 तक। 1526 में पानीपत के लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी लास्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। देन 1527 में उन्होंने राणा संगा को, जो राजपूत रूलर थे, उनको हरा दिया कान्हा में, और 1528 में उन्होंने चंदेरी में राजपूत को हरा दिया, और उनके डेथ से पहले उन्होंने दिल्ली और आगरा के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लिए थे। नेक्स्ट है हुमायूं। उनकी रूलिंग टाइम थी 1530 से लेके 1540, और नेक्स्ट और थे 55 से लेके 1556 तक। हुमायूं ने डिवाइडेड किया था इनहेरिटेंस को अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। सारे ब्रदर्स को उन्होंने दिया था प्रोविंस, और उन्होंने शेर खां जो थे, शेर खां हुमायूं को 2 बार हरा दिया था। एक बार चौसा में 1539 में, एक बार कनौज में 1540 में। उनके बाद 2 बार हारने के बाद हुमायूं को शेर खान ने फोर्स किया ईरान भाग जाने के लिए। वो ईरान चले गए हुमायूं, और वहाँ पे जाके ईरान में सफ़ाविद शाह के साथ मिलके उन्होंने कैप्चर किया दिल्ली को दोबारा इन 55 में, एंड नेक्स्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट रूलर है अकबर। इनके रूलिंग टाइमिंग है 1556 से लेके 1605 तक। 13 ईयर में ये एम्परर बन गए थे, और इनके रीजन को 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पीरियड है 1556 से लेके 1570 तक। सेकेंड पीरियड है 1570 से लेके 1585 तक, एंड थर्ड पीरियड है 1585 से लेके 1605 तक। फर्स्ट पीरियड में इन्होंने मिलिट्री कैंपेनिंग लॉन्च किया अगेंस्ट उनके जो एनिमी थे उनके खिलाफ। सूरी, अफगान और नेबरिंग जो किंगडम थे जैसे मलवा, गोंडवाना और मिर्जा हकीम उज्बेक के खिलाफ। और उन्होंने 1568 और 1569 में सिसोदिया के कैपिटल चित्तौड़ और रणथंभौर को उन्होंने सीज कर लिया था। सेकेंड पीरियड में इसी मिलिट्री कैंपेन को इन्होंने आगे बढ़ाया था। गुजरात से बिहार, बंगाल तक इनको आगे बढ़ाया था, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था मिर्जा हाकिम के सपोर्ट में जो रिवॉल्ट हुआ था उनके वजह से। और थर्ड पीरियड में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैंपेन जो किया था, ये मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया था नॉर्थ वेस्ट में भी, और कांदाहार को इन्होंने सीज कर लिया था सफाविद वही हैं जिनके सपोर्ट में हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पे
आक्रमण कर पाए थे और शेरशाह सूरी को हरा के, शेर खान को हरा के उन्होंने दिल्ली को कब्जा किया था। उसी सफाविद के एक कांदाहार को सीज कर लिया था अकबर ने, और उन्होंने कश्मीर को भी एनेक्स किया था, काबुल को भी एनेक्स किया था मिर्जा हाकिम के डेथ के बाद। और उनके बाद उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था डिकैन और बेरर में भी उन्होंने स्टार्ट किया था, और कंदेश एंड और अहमदन नगर जो थे उनको भी एनेक्स कर लिया था। इनके बाद इनके फ्यूचर जो वो इम्पीरियर थे वो थे जहांगीर। So Akbar was one of the most important and the famous rulers of the Mughal dynasty, and also one of the India's greatest rulers. He is referred to as Akbar the Great. Prince Nuruddin Muhammad Salim ascended the throne as Jahangir after his father's death. He continued his father's religious policies. He maintained friendly relations with the Rajputs, married Rajput princes, and offered high posts to many Rajput rulers. He is famous for his golden bell of justice. जहांगीर, इनके टाइम पीरियड था 1605 से लेके 1627 तक। इन्होंने अकबर के जैसे ही मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया, और कैंपेन की वजह से सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ के अमर सिंह एक्सेप्टेड कर लिए मुगल सर्विस को, और इन्होंने कैंपेन अगेंस्ट किया था सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ, और जिसमें इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। Shahjahan, the son of Jahangir, ascended the throne in 1628. His name in Persian means king of the world. Before ascending the throne, he was known as Prince Khurram. Prince Khurram. During his reign, the three major Deccan states of Bijapur, Golconda and Ahmednagar were subjugated. Subjugated means उनके अधीन। Shahjahan is remembered as a great builder of monuments. The Taj Mahal is the most famous of all his monuments. He also built the city of Shahjahanabad, now known as Old Delhi. When Shahjahan grew old and fell ill, struggle for succession began among his four sons, Dara Saikho, Suja, Murad, and Aurangzeb. At last, Aurangzeb emerged successful and occupied the throne in 1658. Thereafter, Shahjahan was imprisoned. Imprisoned means उनको बंधक बना लिया गया शाहजहां को औरंगजेब के द्वारा by Aurangzeb at the Agra fort in 1658, जब वो सिंहासन में औरंगजेब बैठे, and Shahjahan died in 1666. Aurangzeb. Muhyiddin Muhammad Aurangzeb was the last of the great Mughals. He ascended the throne in 1658 and took the title of Alamgir. He ruled for 49 years. It was under him that the Mughal Empire reached its greatest extent, almost the whole of the Indian subcontinent. Aurangzeb is remembered in history as an orthodox, hardworking, and God-fearing ruler. He died in 1707. His death was followed by a war of succession amongst his sons. औरंगजेब ने नॉर्थ ईस्ट में अहम को हराया 1663 में, एंड यूसुफ जाय एंड सिख के खिलाफ भी कैंपेन में उनको टेम्पररी सक्सेस मिला। मराठा का चीफटेन शिवाजी के खिलाफ कैंपेन में उनको सक्सेस मिला, लेकिन बाद में शिवाजी आगरा से भाग गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर किया, और उन्होंने मुगल के खिलाफ कैंपेन किया। प्रिंस अकबर रिवेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब, और प्रिंस अकबर औरंगजेब के खिलाफ जब खड़े हुए तो प्रिंस अकबर को सपोर्ट किया मराठा और डिकैन के सल्तनत ने। इसके बाद औरंगजेब ने डिकैन सल्तनत के खिलाफ आर्मी को भेजा और बीजापुर और गोलकुंडा को एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया। उन्होंने मराठा के खिलाफ भी कैंपेन स्टार्ट किया, क्योंकि मराठा मुगल के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर चालू किया था, जिसके वजह से औरंगजेब को फेस करना पड़ा, रिवेलिंग सहन करना पड़ा नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ इंडिया के सिख
जट्स एंड सतनामीज एंड नॉर्थ ईस्ट के अहम्स और डिकन के बात करें तो मराठा से उनको प्रॉब्लम हुई। उनके डेथ के बाद उनके सन में, उनके जो बेटे थे उनमें बहुत सारे विवाद हुए। Mughal tradition of succession. The Mughals did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. Instead, they followed the Mughal and Taimur custom of coparcenary. Inheritance means उत्तराधिकार। तो मुगल जो थे वो बिलीव नहीं करते थे प्राइमोजेनिचर को। प्राइमोजेनिचर क्या होते हैं? जो सबसे बड़े बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट बेटे होते हैं या एल्डर होते हैं, उनको पापा के बाद उनको पावर दे देना, इस चीज़ को मुगल विश्वास नहीं करते थे। वो लोग बिलीव करते थे ये कोपरसेनरी को, कोपरसेनरी इनहेरिटेंस को, क्योंकि सारे बच्चे में जो क्या है कि सारे बच्चों में, सारे बेटे में के अंदर पावर को बांटा जाए, इस चीज़ को वो लोग विश्वास करते थे। सो द मुगल did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherited his father's estate. They followed the custom of coparcenary inheritance, or a division of the inheritance amongst all the sons. Mughal relations with other rulers. The Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them. तो मुगल जो रूलर थे उनके खिलाफ कैंपेन करते थे जो उनके अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मुगल जैसे पावरफुल बनते गए, बहुत सारे रूलर जो थे अपनी इच्छा से उनको ज्वाइन किया। जैसे राजपूत जो रूलर के बहुत सारे जो डॉटर्स थे उनको वो मुगल फैमिली में उनकी शादी करवा दिया और उनको हाई पोजीशन मिल गया, जिसके वजह से बहुत सारे जो राजपूत प्रिंसेस थी, जो राजकन्या थी, उनके साथ मुगल फैमिली में उनकी शादी करवा देते थे हाई पोजीशन पाने के लिए। जैसे जहांगीर की जो मम्मी थी वो कछुआ की प्रिंसेस थी और वो डॉटर थी राजपूत ऑफ अंबर की, और शाहजहां की जो मम्मी थी वो भी राठौर की प्रिंसेस थी और वो डॉटर थी राजपूत ऑफ मारवाड़ की। जैसे हमने देखा कि राजपूत बहुत सारे रूलर थे जो अपने डॉटर्स की शादी करवा देते थे मुगल फैमिली में हाई पोजीशन पाने के लिए। बट सिसोदिया जो राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुगल अथॉरिटी को बहुत लॉन्ग टाइम तक। लेकिन मुगल जो थे वो अगर किसी को कब्जा करते थे, जिस लैंड को कब्जा करते थे, एनेक्स करते थे, वो उनको वतन कहा जाता था और वतन को उनको वापस दिया जाता था एक असाइनमेंट के थ्रू कि आप यही राज करोगे लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा, वतन जागीर देना पड़ेगा। किसको? मुगल को। मुगल शासक को क्या करना पड़ेगा? आपको मुगल को आपको उसके टैक्स देना पड़ेगा। So the careful balance between defeating but not humiliating their opponent enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. So the Mughal ruler campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them. The Rajputs served the Mughals voluntarily. Mughals gave mansab and jagirs, which helped them to expand their territories. The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry.